Good morning to all. Today, let's continue with the same chapter, currency forward and future. Now, in last lecture, we discussed about currency forward. Today's lecture, we are going to discuss about currency future. And before that, there is one topic called NDF. This is an important topic as far as exam is concerned. What is NDF? That is non-deliverable forward. This is a part of forward contract portion of government of some nations exercise capital control in order to prevent the volatility in the exchange rate of their currency or for any other political or economic reason. Actually, government sometime buy and sell the foreign currency to prevent the flow of the foreign currency. As you know, the prices of the those currency rise depends on their demand. If the demand of any currency rise, their price also rise, and if demand of any currency decrease, their price also decrease. Price means value of that currency goes down. If demand increase, value increase. Demand decrease, value also decrease. So for these reasons, government use this NDF, and government keep some quantities of foreign currency with them for control their supply of foreign currency. सपोज अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इंडियन रुपीस का वैल्यू डाउन हो रहा है, तो वो डॉलर सेल करके इंडियन रुपीस बाय कर सकती है. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इंडियन रुपीस का वैल्यू डाउन हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके पास जो करेंसी पड़ी है डॉलर सपोज, तो वो डॉलर सेल करेगी और उसके कंपेयर में बाय करेगी रुपीस. तो देखो, रुपीस का डिमांड बढ़ा तो पॉसिबिलिटी है कि रुपीस का वैल्यू भी बढ़े. So for these way, for controlling the supply of foreign currency or Indian currency, गवर्नमेंट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड. ठीक है, ये क्या होता है? एनडीएफ वर्क इन मच द सेम वे एज अ डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ये फॉरवर्ड जैसा कॉन्ट्रैक्ट ही है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है करेंसी में, कि जब कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होता है तब आपको करेंसी का डिलीवरी मिलता है. सपोज आपने करेंसी बाय किया है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा तब आपको डिलीवरी मिल जाएगी और आपको पेमेंट कर देना है. सिंपल, ये सिंपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है. ये एनडीएफ जो है वो सेम वो डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, बट एक ही चेंज है, यहाँ पे कोई डिलीवरी नहीं लेनी है. देखो लिखा है यहाँ पर, you can set an exchange rate over a specific over a time. The difference is that at the end of contract doesn't result in a delivery of the foreign currency. Instead, NDF net the difference in exchange rate. देखो फिर से एक बार समझाता हूँ. डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा करेंसी का, उसमें क्या होता था कि मैच्योरिटी जब होती है तो मैच्योरिटी डेट पे हमको फॉरेन करेंसी की डिलीवरी लेनी है और हमको पेमेंट कर देना है. हाँ, उसमें भी नॉन डिलीवरी पॉसिबल है, बट जनरली हम डिलीवरी लेते हैं और पेमेंट करते हैं. लेकिन यहाँ पे एनडीएफ जो गवर्नमेंट करती है वो डिलीवरी नहीं लेती है. डिमांड सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए वो एट द एंड ऑफ दिस पीरियड वो सब क्या सेटलमेंट करती है, नेट सेटलमेंट करती है. जो डिफरेंस आता है दो एक्सचेंज रेट के बीच में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका वो सेटलमेंट कर देंगी. मतलब अगर लेना होगा तो मिलेगा और हमको किसी को पे करना है गवर्नमेंट को तो पे कर देंगे. सिंपल, यहाँ पे कोई आपको डिलीवरी नहीं लेनी है, फिजिकल डिलीवरी. NDF are forward contract normally entered offshore and cash settle. ये जनरल किस में सेटलमेंट होता है? कैश सेटल. क्लियर? देन evolution. तो evolution in 70s when Australian dollar was subscribed to capital restriction, NDF began trading, obviating the requirement of the delivery and yet providing effective hazing. ये hazing के लिए भी यूज करता है गवर्नमेंट, इसको hazing के लिए भी यूज करती है. NDF market primarily consists of 6 Asian currency. पहले ये 6 Asian currency से चलता था: Chinese, Romanian, Indian rupees, Korean won, Indonesian rupiah, Philippine peso, and Taiwan dollar, all of which have capital control in varying the degree. पहले ये 6 currency से चलता था, but later on अभी सब increase हो रहा है, ये सब अभी add हो गया.
पहले तो 6 कंट्री थी, अभी ये सब ऐड हो गया धीरे धीरे, और बाकी सब करेंसी भी ऑलरेडी एडेड है कि जिससे आप एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फीचर ऑफ एनडीएफ, तो एनडीएफ प्रोवाइड मच नीडेड लिक्विडिटी एंड डेप्थ टू नॉन कन्वर्टेबल करेंसी। ये लिक्विडिटी, इजीली लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी असेट्स की डिलीवरी नहीं लेनी है। अगर आप कोई भी असेट्स की डिलीवरी लेते हो तो आपकी लिक्विडिटी फिक्स हो जाती है, बट यहाँ पर तो सिर्फ पेमेंट ही करना है, मैच्योरिटी पे लेना है या पेमेंट कर देना है, तो लिक्विडिटी इसमें ज्यादा है। एनडीएफ रेट आर कंसिडर बेटर बिकॉज दे आर मार्केट डिटरमाइन। ये जो एनडीएफ का रेट होता है, जो एक्सचेंज रेट, वो बहुत अच्छा है, बेटर है, क्योंकि ये मार्केट डिटरमाइन होता है, मार्केट थ्रू डिसाइड होता है। और मोस्ट एनडीएफ आर कैश सेटल इन यूएस डॉलर, ठीक है, जनरली यूएस डॉलर में कैश सेटल होता है। हाउ एनडीएफ वर्क, सिंपल समझ लो फटाफट इन डिवीजन। एनडीएफ वर्क इन अ सेम मैनर एज डिलीवरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जैसा ही है। The settlement of NDF is done in foreign currency in cash with the difference of the forward price and the settlement price, ठीक है। एनडीएफ का सेटलमेंट किसमें होता है, आपने जो फॉरवर्ड प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किया है और जो प्राइस पे हमने सेटल किया, मतलब स्पॉट प्राइस और फॉरवर्ड रेट प्राइस, मतलब फॉरवर्ड प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट रेट। देख लिखा है सेटलमेंट अमाउंट, कितना पे करना है, सेटलमेंट मतलब पैसा इधर मिलेगा या पे करना है, तो 1 माइनस फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय सेटलमेंट रेट इनटू नोशनल प्रिंसिपल। नोशनल प्रिंसिपल मतलब जितने प्रिंसिपल का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये आपको करना है। क्लियर? सो दिस वे एनडीएफ वर्क। सिंपल। Desirability of NDF, it is believed that NDF market facilitate smoother transaction of economy। ये किस लिए यूज होता है कि इकोनॉमी का जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़ा स्मूथ हो। फॉर दैट फ्रॉम द कंट्रोल regime to full convertibility as they serve as intermediate breeze for the interim period, ठीक है। इकोनॉमिक को कंट्रोल और स्मूथर बनाने के लिए एनडीएफ का यूज करता है गवर्नमेंट। प्रोवाइड स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज डेवलप in the NDF market to be adapted in the deliverable forward contract। क्लियर? तो ये इजी मार्केट प्रोवाइड करता है। तो सिंपल एनडीएफ, ये एनडीएफ का मतलब होता है वो डिलीवरी फॉरवर्ड जैसा ही है, बट यहाँ पे मैच्योरिटी डेट पे आपको डिलीवरी नहीं लेनी है, ठीक है, सिर्फ कैश सेटलमेंट करना है। नाउ करेंसी फ्यूचर। So currency future are the derivative based on the exchange rate that are exchange traded and are substituted to the forward contract। ये forward contract का क्या है, substitute, but दोनों सेम ही है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी होता है और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। फ्यूचर ऑन करेंसी लाइक एनी अदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन करेंसी स्टैंडर्डाइज है, जिसमें साइज फिक्स होती है, डिलीवरी फिक्स होती है, टाइम टिक साइज भी फिक्स होती है और सेटलमेंट भी फिक्स होता है। तो ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नाउ प्राइसिंग ऑफ द फ्यूचर, एज यू नो प्राइसिंग, देखो प्राइसिंग, फ्यूचर प्राइस डिसाइड करने के, वो इंडेक्स फ्यूचर हो, वो स्टॉक फ्यूचर हो, वो कमोडिटी फ्यूचर हो, या वो करेंसी फ्यूचर हो, सिंपल फॉर्मूला होता है कि स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। ये सिंपल फॉर्मूला है, स्पॉट प्राइस प्लस उसका कॉस्ट ऐड कर दो, लिखा है यहाँ पे देखो, इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब क्या, जो हमने एसेट्स बाय किए उसके पीछे जो भी हम खर्चा करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट हो, स्टोरेज का खर्चा हो, इसमें स्टोरेज का खर्चा नहीं आएगा बट कमोडिटी में पॉसिबल है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो वो ऐड करेंगे, आपका फ्यूचर प्राइस मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट डिफरेंटली रिफ्लेक्ट द नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। जो इंटरेस्ट रेट दो कंट्री के अलग अलग होते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ कैरी में, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन सम। टुडे इज द December 12 एंड January फ्यूचर वुड एक्सपायर ऑन 28। आज कितना हुआ है, December 12 हुआ है, 12 दिसंबर, और एक्सपायर हो रहा है 28 जनवरी। स्पॉट रेट इन एक्सचेंज मार्केट ऑफ डॉलर, अभी स्पॉट रेट मतलब अभी का डॉलर का प्राइस है 45.45। द यील्ड इन टी बिल, यील्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, इंडियन का इंटरेस्ट रेट है 5.90 और यूएसए का इंटरेस्ट है 2.45, ठीक है। कैसे फ्यूचर प्राइस डिसाइड करते हैं करेंसी की, उसका एग्जाम है, ये पूछा जाता है। क्लियर? हाउ यू कैन डिसाइड द फ्यूचर प्राइस ऑफ करेंसी। चलो फिर से, अभी क्या है December 12 और कब एक्सपायर हो रहा है, 28 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है। अभी डॉलर का स्पॉट प्राइस डॉलर का है 45.45, इंडियन का इंटरेस्ट रेट है 5.90 और यूएसए का है 2.45। एट व्हाट प्राइस January फ्यूचर विल बी ट्रेडेड,
कितना जनवरी फ्यूचर का प्राइस कितना होना चाहिए और कितने में ट्रेडिंग होना चाहिए, हमको जनवरी 28 जनवरी का फ्यूचर प्राइस डिसाइड करना है। तो फॉर्मूला ये है, देखो F1 इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस इनटू, ये थोड़ा चेंज है, फॉर्मूला सब में सेम जैसा ही है बट थोड़ा थोड़ा चेंज होता है यहाँ पर ऊपर, ई रेस टू आरडी मतलब रेट ऑफ डोमेस्टिक माइनस आरएफ का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू टी। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आरडी का मतलब होता है रेट ऑफ डोमेस्टिक माइनस रेट ऑफ फॉरेन इनटू टी। चलो देखते हैं पहले एसओ मतलब स्पॉट प्राइस, व्हाट इज द स्पॉट प्राइस 45.45 इनटू ई। चलो आरडी डोमेस्टिक की, पहले डोमेस्टिक का इंटरेस्ट रेट लेना है, कितना है 0.0, पॉइंट में कन्वर्ट करें तो कितना होता है 0.0590 माइनस फॉरेन का इंटरेस्ट रेट 0.0245 इनटू अभी टाइम, तो टाइम कितना है देखो दिसंबर 12 से जनवरी 28, चलो दिसंबर में 12 डेट तो हो गया, तो दिसंबर में अभी कितने बाकी बचे, दिसंबर में टोटल कितने दिन होते हैं 31 में से 12 दिसंबर तो हो गया, तो अभी कितने बाकी बचे 19, कितने डे बाकी बचे 19, 12 दिसंबर हुआ तो दिसंबर खत्म होने में 19 डेज, और 19 डेज वो और 28 डेज ये, तो 28 और 19 टोटल कितने डेज हुए 57 डिवाइडेड बाय 365, यहाँ पे डेज दिए हैं। आपको ये भी बोल सकते हैं कि 3 मंथ का, तो 3 मंथ का लिया होता तो क्या देते हैं 3/12, एक ऐसा बोला होगा कि 3 मंथ के बाद का फॉरेन फ्यूचर प्राइस डिसाइड करो तो 3/12 ले लेना है, बट यहाँ पे डेज दिया है इसीलिए 57 डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्राइस आएगा 45.6991 इज योर आंसर। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट फ्यूचर प्राइस ऑफ करेंसी। ठीक है, नाउ हेजिंग विथ फ्यूचर करेंसी फ्यूचर, hedging means you can reduce the risk by using the currency future. We use the same principle of taking a position in the future market opposite to that physical market. फिजिकल मार्केट में हमारा जो पोजीशन है उससे हम एग्जैक्ट ऑपोजिट पोजीशन लेते हैं फ्यूचर मार्केट में। लेटर वी एंटर्ड इनटू द अनदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफसेटिंग द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट। आपको वैसे पता ही होगा, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया है, अगर हम कोई अभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जैसे कि बाय, तो फ्यूचर में हम ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अभी हमने बाय किया है तो फ्यूचर में हम क्या करते हैं सेल, और अभी हमने सेल किया है तो फ्यूचर में हम क्या करते हैं बाय, तो ऑफसेटिंग पोजीशन लेते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, द फाइनल प्राइस इन द हेज थ्रू फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द प्राइस एट द टाइम। ये फ्यूचर प्राइस जो है वो कुछ पॉइंट पे डिपेंड होता है, इनिशियल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, कैंसिलेशन होगा कि नहीं, और स्पॉट प्राइस, ये सब पे फ्यूचर प्राइस डिपेंड होती है। नाउ इंपोर्टर हेज, व्हाट इज इंपोर्टर हेज? तो इंपोर्टर कौन है? अ पर्सन हु इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम द फॉरेन मार्केट, और इंपोर्टर ऐसा है जिसको पेमेंट करना है। इंपोर्टर हेज क्या होता है? इंपोर्टर इज अ पर्सन हु इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम द फॉरेन, तो उसको फॉरेन करेंसी पे करना है, उसको इंपोर्टर को फॉरेन करेंसी पे करना है। चलो फॉरेन करेंसी पे करना है तो उसको कौन सा रिस्क होगा? फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉरेन करेंसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर उसको पेमेंट करना है तो उसको क्या प्रॉब्लम रहेगा, क्या बिक रहेगा? तो उसको वो डर होगा कि फॉरेन करेंसी का प्राइस अप ना हो जाए। सपोज हम इंपोर्टर है और हमको डॉलर पे करना है आफ्टर 3 मंथ्स, हमने कुछ अमेरिका से इंपोर्ट किया और हमको डॉलर में पेमेंट करना है आफ्टर 3 मंथ्स, तो हमको क्या बिक रहेगा कि 3 महीने के बाद डॉलर का प्राइस अप ना हो जाए। तो इंपोर्टर हैव अ रिस्क ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, और एक्सपोर्टर को क्या रिस्क है? उसको पैसे मिलने वाला है तो फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट ना हो जाए, क्योंकि डेप्रिशिएट होगा तो पैसा भी, वैल्यू कम होगा ना पैसे का, दैट्स व्हाई एन इंपोर्टर फियर एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, और डेप्रिशिएशन ऑफ लोकल करेंसी। तो चलो, उसको क्या डर है कि फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट ना हो जाए। ध्यान से समझना, वो क्या करेगा, कौन सी पोजीशन लेगा, फिर बाद में हर बार मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, इंपोर्टर ऐसा है कि जिसको लग रहा है कि फॉरेन में डॉलर, सपोज डॉलर का प्राइस अप होने वाला है, तो अभी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाय या सेल? फिर से बता रहा हूं, आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है। इंपोर्टर एक ऐसा पर्सन है जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना है। ये सुनो, इंपोर्टर एक ऐसा पर्सन है जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो उसको क्या क्या रिस्क रहेगा कि फॉरेन करेंसी अप ना हो जाए। चलो, उसको डर है कि फॉरेन करेंसी अप हो जाएगी सपोज,
तो वो क्या करेगा अभी फॉरेन करेंसी, अभी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो बाय फॉरेन करेंसी करेगा। अभी उसको फ्यूचर में क्या लग रहा है, फॉरेन करेंसी अप होने वाला है, तो अभी तो वो बाय करके रखेगा ना, क्योंकि अभी बाय कर देगा तो फ्यूचर में उसको ज्यादा पेमेंट ना करना पड़ेगा। तो बाय करते हैं ना, उसको बोलते हैं लॉन्ग हेज। क्या बोलते हैं, लॉन्ग हेज। क्लियर, लॉन्ग हेज मतलब बाय द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इंपोर्टर क्या करेगा, अभी बाय करेगा, फ्यूचर में सेल करेगा, याद रखना। इंपोर्टर क्या करेगा, अभी बाय, फ्यूचर में सेल। और ये एक एग्जांपल है। और एक्सपोर्टर क्या करेगा, अभी सेल करेगा, फ्यूचर में बाय करेगा। इसको याद रखना थोड़ा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। इन जून 2008 एन इंडियन इंपोर्टर बाय अ मशीन एट $50,000। इंपोर्टर का एग्जांपल है। इंडियन कोई है जिसने मशीन बाय किया यूएस से $50,000। $50,000 पेमेंट करने, पेमेंट इज ड्यू आफ्टर 6 मंथ इन दिसंबर 2008। ठीक है, और पेमेंट 6 महीने के बाद करना है। द स्पॉट एक्सचेंज रेट, अभी का रेट है, स्पॉट एक्सचेंज रेट है 45.5625, वाइल दिसंबर फ्यूचर, अगर आपको दिसंबर जब हमको पेमेंट करना है उस दिन का अगर आपको फ्यूचर बाय करना है तो वो 46.65 पे मिल जाए, इंडिकेटिंग एन एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर बाय 2.4% इन 6 मंथ। देखो कभी कभी अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं ना, तो वो फ्यूचर का प्राइस देख के समझ में आ जाता है कि फ्यूचर में प्राइस अप होने वाला है कि डाउन होने वाला है। यहाँ पे देखो अभी डॉलर का प्राइस है 45.56 और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने में बाय सेल हो सकता है 46, तो एप्रिसिएशन दिखा रहा है ना कितने परसेंट, 2.4%, वो हमने गिना हुआ है इसमें। तो सिंपल है कि अभी डॉलर का प्राइस 45.56 है और अगर आपको फ्यूचर बाय करना है 6 मंथ का फ्यूचर तो 46.65 पे बाय कर सकते हैं, अभी करना है तो। ठीक है, नाउ द इंपोर्टर फील, थर्ड पॉइंट, द इंपोर्टर फील दैट डॉलर विल अप्रिशिएट मच मोर व्हाट सेल ही डू। उसको लग रहा है कि डॉलर अप्रिशिएट होने वाला है, याद रखना ये इंपोर्टर है और उसको लग रहा है कि डॉलर अप्रिशिएट होने वाला है इससे भी ज्यादा। तो बट ऑब्वियसली इंपोर्टर को लग रहा है कि डॉलर अप्रिशिएट होगा तो वो पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाय फ्यूचर करेगा। ठीक है, इंपोर्टर को लग रहा है तो पहले बाय करेगा क्योंकि फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो अभी तो बाय करने चाहिए ना। चलो अज्यूम कर लो कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कितने में अवेलेबल है, 1000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज, लॉट में होता है, तो एक 1000 का लॉट साइज है। ठीक है, हमको कितना पैसा चाहिए, $50,000 चाहिए। हमको कितना पैसा चाहिए, 50,000, और एक लॉट कितने का है, 1000 का, तो 50 लॉट परचेस करना पड़ेगा ना। कितनी लॉट परचेस करना पड़ेगा, 50 लॉट, सिंपल। चलो क्या करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना लॉट परचेज करेगा, 50, टोटल $50,000 चाहिए, एक लॉट 1000 का है तो 50 कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, यहाँ पे लिखा है हैविंग बॉट 50 फ्यूचर। इंपोर्टर को रिस्क है तो वो पहले बाय करेगा, और कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय करेगा, 50 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करेगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट, समझते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। चलो समझो, व्हेन यूएस डॉलर, एक कंडीशन दी है कि व्हेन यूएस डॉलर एप्रिशिएट 47.56, समझ लो कि यूएस डॉलर का प्राइस कितना हुआ, 47 हो गया उस दिन का दिसंबर का स्पॉट प्राइस है, और उस दिन वापस फ्यूचर में कितना सेल हो रहा है, फ्यूचर सेल हो रहा है 47.57 पे सेल हो रहा है उस दिन। ठीक है, चलो आई होप यू अंडरस्टैंड। दो हमको 4 प्राइस दी है, ध्यान से समझना। आज का ये समझ, जब हमने स्टार्ट किया आज का स्पॉट प्राइस है 45.56 और अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है या सेल करना है तो 46.65। तो हमने क्या डिसीजन लिया, हमने इंपोर्टर को रिस्क है इसीलिए इंपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। ठीक है, कितने में बाय करेगा, 46.65। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, ये तो स्पॉट प्राइस है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने में बाय करेगा, 46.65। ठीक है, क्योंकि उसको रिस्क है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो अभी बाय करना चाहिए। याद रखना 46.65 पे बाय किया। आफ्टर 6 मंथ मतलब दिसंबर में एक्चुअली डॉलर का प्राइस कितना हो गया, 47, और उस दिन वापस उस दिन फ्यूचर इतने में सेल हो रहा है। चलो अभी हम समझते हैं एक्चुअली कॉस्ट कितना होगा। अगर हम कुछ नहीं करते, हम ऐसे ही बैठे रहते, हमको रिस्क लग रहा था लेकिन हमने कुछ नहीं किया, तो हमने कुछ नहीं किया होता तो हमको $50,000 चाहिए थे ना, $50,000।
तो हमको कितने में बाय करने पड़ते हैं? ये आज का प्राइस है, दिसंबर का, 6 महीने बाद का, मतलब आज दिसंबर का प्राइस है। अगर हम कुछ नहीं करते तो आज इतना प्राइस होता 47.56। तो 47.56 इंटू $50,000, तो हमको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ता? 23,78,000 पेमेंट करना पड़ता अगर कुछ नहीं करते तो। लेकिन हमने क्या किया? ईजिंग किया। ईजिंग मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया और रिस्क रिड्यूस करने का ट्राई किया। चलो एक्चुअली रिस्क रिड्यूस हुआ कि नहीं वो देखते हैं। हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या किए थे? बाय। कितने में बाय किए थे? याद रखना 46.65 बाय किए थे। तो मैंने आपको पहले बता दिया, जब हम पहले बाय करते हैं तो फिर फ्यूचर में हमको क्या करना पड़ता है? सेल। तो हमने बाय किए 46.65, हेज करना है तो बाय किए तो फिर सेल भी करना पड़ेगा ना। तो सेल कितने में करेंगे? फ्यूचर 47.57। याद रखो अगर फ्यूचर पहले बाय करते हैं तो फिर ऑफसेट पोजीशन को ऑफसेट करने के लिए फिर सेल करना है। तो कितने में सेल करेंगे? फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर कितने में सेल हो रहा है? 47.57। तो देखो बाय किया था 46.65, सेल करेंगे 47 पॉइंट, तो फायदा हुआ ना। कितने का फायदा हुआ? जितने का भी हुआ इनटू ये $1 का फायदा है। बाय किया था 46 में स्टार्टिंग में और अभी सेल कर रहे हैं 47 में, तो जो भी प्रॉफिट हुआ इनटू 50,000, कितना प्रॉफिट हुआ? 46,000 प्रॉफिट हुआ। चलो हमारा एक्चुअली कॉस्ट कितना है? 23,78,000। कुछ नहीं करते तो इतना कॉस्ट आता ना, उसमें से हमारा देखो कुछ नहीं करते तो इतना कॉस्ट आता, लेकिन हमने ईजिंग किया तो 46,000 का फायदा हुआ ना। इसमें से ये 46,000 माइनस कर दो, तो हमको एक्चुअली कॉस्ट कितना हुआ? 23,32,000। खर्चा कम हो गया, ये टोटल कॉस्ट है। चलो एक काम करो, डिवाइड बाय $50,000 कर दो, तो $1 का कितना खर्चा हुआ हमको समझ में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय $50,000, तो $1 का खर्चा हुआ 46.64। ध्यान से समझो, अगर हम कुछ नहीं करते, हेजिंग नहीं करते, हेजिंग का यूज नहीं करते, तो हमको $1 कितने में पड़ता? 47। देखो यहाँ पर 47.56, मतलब हमने हेजिंग किया तो हमको सिर्फ 46.64 में पड़ा, हमको 46,000 का फायदा हुआ। This is called hazing. You can reduce the risk by using the hazing. Clear? Now, exporter haze. Now, what is the exporter haze? हाँ, एक और स्लाइड थी बीच में कि अगर प्राइस डेप्रिशिएट होता तो क्या करता, तो सेम टू सेम आपको वही बेस लेके यू हैव टू कैलकुलेट द सम. नाउ एक्सपोर्टर हेज. An exporter fear depreciation of foreign currency. एक्सपोर्टर को किसका रिस्क है कि फॉरेन करेंसी क्या ना हो जाए? डेप्रिशिएट. एक बार आप पढ़ो थियरी, चलो ध्यान से. एन एक्सपोर्टर, बट ऑब्वियसली यू आर द एक्सपोर्टर. अभी आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पैसे फ्यूचर में मिलने वाले हैं. तो पैसे फ्यूचर में मिलने वाले हैं, मतलब फ्यूचर में सपोज हमने यूएस एक्सपोर्ट किया है तो हमको डॉलर मिलने वाला है. तो डॉलर का वैल्यू डाउन नहीं होना चाहिए, वही हमको रिस्क होगा ना, क्योंकि वैल्यू डाउन हो गया तो डॉलर उतने मिलने वाले हैं, बट वैल्यू डाउन हुआ तो पैसे तो रुपीज में कम मिलेंगे ना. तो एक्सपोर्टर को रिस्क होता है डेप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी. क्लियर? देखते हैं. एन एक्सपोर्टर इज अ लॉन्ग ऑन फॉरेन करेंसी. चलो अगर उसको फॉरेन करेंसी डिक्रीज होने का डर लग रहा है तो अभी एक्सपोर्टर पहले कौन सा पोजीशन लेगा? शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर. देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज कॉल्ड शॉर्ट हेज. वो शॉर्ट पोजीशन लेगा, मतलब वो पहले सेल करेगा. हमने इंपोर्टर में क्या किया? पहले बाय किया फिर सेल किया. लेकिन अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपको रिस्क रिड्यूस करने के लिए पहले आप फॉरेन करेंसी सेल करेंगे, फिर मैच्योरिटी पे वापस बाय करेंगे. ठीक है? तो आपको जो फायदा होगा वो आपको, जो आपको नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, उसको आपको ऑफसेट कर देगा. ठीक है? तो याद रखो, इंपोर्टर ऑलवेज फर्स्ट टेक बाय पोजीशन एंड एट द मैच्योरिटी दे विल टेक शॉर्ट पोजीशन, मतलब सेल द कॉन्ट्रैक्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग, इंपोर्टर currently take the long position, मतलब buy. In future they will take the short position, that is the sell. और एक्सपोर्टर उल्टा होता है, अभी सेल करता है दैट इज शॉर्ट पोजीशन लेता है, और फ्यूचर में बाय करता है दैट इज लॉन्ग पोजीशन लेता है. क्लियर? इसको याद रखना. नाउ स्पेकुलेशन विद द करेंसी फ्यूचर.
We may speculate with the currency future if investor does not agree with the premium or discount at which the future traded. Generally, many people doing using this future contract of currency by speculation. Speculation means for gaining the profit. जब कोई प्रॉफिट के लिए फ्यूचर का यूज करता है, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन. वो रिस्क रिड्यूस करने के लिए फ्यूचर का यूज नहीं करता है. ठीक है, समझते हैं. वी बाय फ्यूचर फर्स्ट एंड सेल लेटर. कब करते हैं? वी बाय फ्यूचर फर्स्ट एंड सेल लेटर. जब हमको लग रहा है कि फॉरेन करेंसी क्या होने वाली है, अप. फॉरेन करेंसी का वैल्यू अप होने वाला है, तब हम पहले क्या करते हैं? स्पेकुलेशन. सिंपल है. स्पेकुलेशन मतलब हम ट्राई करेंगे कि हमको प्रॉफिट मिले. तो प्रॉफिट जब हमको लग रहा है कि फ्यूचर में डॉलर का प्राइस अप होने वाला है, तो अभी हम बाय करेंगे और अब बाद में उसको क्या कर देंगे? सेल. देखो लिखा है, इफ फॉरेन करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू एप्रिशिएट मोर देन द प्रीमियम. हाँ, एक और चीज आपको समझानी है. व्हेन यू आर डूइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यू नीड टू पे प्रीमियम. आपको कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, और वो प्रीमियम आपको वापस मिलता नहीं है. ठीक है, वो प्रीमियम आपको वापस मिलता नहीं है. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. अभी फॉरेन करेंसी चल रही है 70 रुपीस में डॉलर. अभी डॉलर का प्राइस है 70 रुपीस. आपको लग रहा है, और प्रीमियम हमने प्रीमियम पे किया है 1 रुपीस. ठीक है, सपोज हमने प्रीमियम 1 रुपीस पे किया है, से फॉर एग्जांपल. तो अभी डॉलर का प्राइस है 70 और हमने प्रीमियम के पे किया है 1 रुपीस. 2 रुपीज, चलो ना समझ लेते हैं. प्रीमियम हमने पे किया है 2 रुपीज, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. तो हमको क्या लग रहा है कि फॉरेन करेंसी अप होने वाली है, लेकिन 2 रुपीज हमने प्रीमियम के पे किया और अभी का प्राइस है 70, तो 72 हुआ. तो फॉरेन करेंसी 72 से ज्यादा अप होने चाहिए, तभी हमको फायदा होगा ये कॉन्ट्रैक्ट करने का. मतलब ये बाय करके सेल. देखो लिखा है, if foreign currency is expected to appreciate more than premium. more than premium मतलब 70 रुपीज अभी का प्राइस, आपने प्रीमियम कितना पे किया? 2. तो फॉरेन करेंसी प्रीमियम से ज्यादा अप होनी चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा अप होनी चाहिए, मतलब 73 प्राइस होना चाहिए या 74. आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस 72 या 73 या 74 होगा, तो ही आप स्पेकुलेशन करो. लेकिन अगर फॉरेन आपको लग रहा है कि प्राइस 71 ही होगा, तो क्यों ऐसा करना है स्पेकुलेशन? क्योंकि आप 70 अभी प्राइस है और आप 2 रुपीज तो प्रीमियम पे करें, तो ऑलरेडी 72 में तो आपको पड़ गया, और फिर अगर 71 होगा तो 1 रुपीज का तो नुकसान होगा ना. तो आप कब स्पेकुलेशन करते हैं? जब आपको लगता है कि फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो मोर देन प्रीमियम. तो आप पहले क्या करेंगे? अगर एप्रिशिएट हो तो पहले बाय करेंगे फ्यूचर, फिर फ्यूचर को क्या करेंगे? सेल. क्लियर? और उल्टा, पहले हम सेल करेंगे फिर बाय. कब करते हैं? जब हमको लग रहा है कि फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएटेड appreciated less than the premium. फॉरेन करेंसी appreciated और depreciated less than the premium, अगर हमको ऐसा लग रहा हो तो. So this way you can use the speculation. And last one, arbitrage. As you know, arbitrage का मतलब होता है when we are taking the advantage of different prices in two markets. चलो, उसमें लिखा है when future is overpriced. I hope you know overprice क्या होता है. ओवर प्राइस का मतलब होता है एक्चुअल जो प्राइस होने वाली होनी चाहिए उससे वो ज्यादा होती है. सपोज हमको लग रहा है कि डॉलर का फ्यूचर प्राइस 75 होना चाहिए, लेकिन अभी 77 दिखा रहा है, तो ओवर प्राइस है. हमको ऐसा, हमने कैलकुलेशन किया, हमारे कैलकुलेशन के आधार पे हमको लग रहा है कि फ्यूचर डॉलर का प्राइस 75 होना चाहिए, लेकिन अभी अगर आप देखें ना फ्यूचर का प्राइस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो 77 दिखा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ओवर प्राइस. ठीक है, तो ओवर प्राइस में क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए? एक्शन नाउ. चलो, ओवर प्राइस में फ्यूचर में प्राइस क्या होती है? डाउन हो जाती है. यस नो? तो आपको क्या करना चाहिए? बोरो लोकल करेंसी फॉर द पीरियड ऑफ फ्यूचर मैच्योरिटी. फ्यूचर मैच्योरिटी तक फॉरेन करेंसी को आपको क्या करना है? बोरो करना है, और कन्वर्ट टू फॉरेन करेंसी. इसको फॉरवर्ड करेंसी में कन्वर्ट करो. देन इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी फॉर द पीरियड ऑफ फ्यूचर. पहले आप क्या करो? फॉरेन करेंसी बाय करो, फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके डॉलर में कन्वर्ट करो, और वो डॉलर यूएसए में इन्वेस्ट करो. ठीक है, और जब मैच्योरिटी हो जाए तो डॉलर को सेल कर दे वापस, क्या बाय कर दो? यूपी रुपी बाय करो.
देखो लिखा है। तो दिस वे यू कैन गेट अ प्रॉफिट। ठीक है, जब क्या हो, ओवर प्राइस हो, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले फॉरेन करेंसी बाय करो, सॉरी लोकल करेंसी बाय करो, देन कन्वर्ट लोकल करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन करेंसी को वहां पे इन्वेस्ट करो, और जब मैच्योरिटी हो जाए तो वो जो फॉरेन करेंसी हमको जो मिली उसको रुपीज में क्या कर दो, कन्वर्ट। दिस वे यू कैन टेक अ आर्बिट्रेज। क्लियर? सो इन दिस चैप्टर वी लर्न 2 पॉइंट्स, करेंसी फॉरवर्ड पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, पहले पार्ट ऑफ लेक्चर में, और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा फ्यूचर। और फ्यूचर और फॉरेन में 3 चीज कॉमन है। तो फ्यूचर में और फॉरवर्ड में एक तो स्पेकुलेशन हो सकता है, फ्यूचर और फॉरवर्ड का यूज स्पेकुलेशन के लिए होता है, फिर आर्बिट्रेज के लिए होता है, और स्पेकुलेशन के लिए होता है। क्लियर? सो दिस वे यू कैन यूज करेंसी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर।